Dear friends, today I am going to explain you the topic of consolidation of accounts, an important topic in paper of advanced accounts in CA Inter Group 2. In our this course, there is only two things are covered. One is the consolidation of balance sheet and another is a consolidation of P&L. There is an also consolidation of cash flow statement which is not in our syllabus. In today's topic, I will only cover a consolidation of balance sheet, and also I will explain this topic in my 3 videos. In part 1 today video I will only explain a sum aspect. In another video I will take up the dividend aspect. In another video, last video, I will take up the revaluation of assets and liabilities. Now the objective, what is an objective of preparing a consolidated balance sheet? Objective of preparing the consolidation balance sheet is to present the group assets and group liability. Means for a user, holding company is separate entity and subsidiary is a separate entity. But a user outsider wants to know what is the total assets and liability of the group constituted by this holding and subsidiary. To provide to the outsider the group assets and group liability, there arise a need for the consolidated balance sheet. In this topic, I am not going to discuss about the legal aspects, legal provision associated with consolidation of accounts, and in this discussion, I will also not present the balance sheet as per the Schedule 3. I will only explain the concept associated with the how accounts of the holding and subsidiary, rather accounts, how balance sheet of subsidiary and the holding are consolidated. Only I will discuss the concepts. The presentation aspect as per Schedule 3 is not being considered in this discussion. The process of consolidation is that no journal entries in the books of either holding or subsidiary is required to be passed. Means we have studied in a group 1 there is a branch where there is a head office and there is a branch, and in order to incorporate the trial balance of the branch in the books of HO, we need to pass the required journal entries. But in consolidation process there is a no journal entry, means the accounts of the subsidiaries are not incorporated in the books of the holding company. The console balance sheet is being prepared how? Only adding the line item of each assets and liability of the holding and subsidiary company, and in this process there needs to arise requirement of elimination of intercompany assets and liability. Means we have to present only the group assets and group liability. If holding company is required to pay something to the subsidiary company, means it's a liability for the holding company, an asset for the subsidiary company, we need to eliminate that assets and liability because it does not represent the group assets and group liabilities. तो सिंपल कंसोलिडेशन, हमको हर एक लाइन आइटम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का ऐड करना है और इस प्रोसेस में इंटर कंपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को हमको एलिमिनेट करना है. मैं कंसोल पीएनएल अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इसके ऊपर मैं अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ. जो मैं अपना स्टडी आपको ये डिस्कशन समझा रहा हूँ, मैंने इसको समराइज ऐसे करा है. मैं आपको इस सीक्वेंस में मैं आपको समझाऊंगा. हमने पहला केस ले रहे हैं, होल्डिंग कंपनी एक्वायर्ड 100% ऑफ द शेयर ऑफ सब्सिडियरी कंपनी ऑन रिपोर्टिंग डेट and there are no reserves in the balance sheet of subsidiary company. Reporting date means a date on which we are required to prepare a consolidated balance sheet, which is the end of the year, financial year. Second, इस केस में पहले केस में 3 सिचुएशन ले रहा हूँ. होल्डिंग कंपनी एक्वायर द शेयर एट फेस वैल्यू, holding company acquire a share at more than face value, holding company acquire a share at less than face value. सेकेंड सीक्वेंस में जो मैं पिक करूंगा वो मैं केस पिक करूंगा, होल्डिंग कंपनी एक्वायर लेस देन 100% से 80% शेयर ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी
on reporting date and there are no reserves in the balance sheet of subsidiary company. Again, three cases: face value, more than face value, at less than face value. हर केस में जो मैं डिस्कशन कवर करूंगा, होल्डिंग कंपनी एक्वायर शेयर्स ऑफ सब्सिडरी before reporting date and there also reserve and surplus in the books of subsidiary company. इस ऑर्डर में मैं आपको समझाऊंगा सिंपल वे में. You will definitely understand how to do the consolidation of the balance sheet. पहला हम केस कौन सा ले रहे हैं? The holding company has acquired the shares of the subsidiary company on the reporting date. Reporting date मेरी कौन सी हो रही है? Balance sheet date. Second case, holding company has acquired 100% shares at a face value. This is simplest case just to enable you to understand what is consolidation of balance sheet. Now the holding company has a share capital of 5 lakh rupees. Is it a group liability? Yes, definitely. This is the amount payable to the shareholders of the holding company, hence it will be shown as the liability in consolidated balance sheet. Hence it's shown as the liability in a consolidated balance sheet. Secondly comes the liability of the subsidiary company. This is the shareholding, this is the shares held by the subsidiary. This is the shares held by the subsidiary company. This is the shares held by the holding company. मीन्स ये जो शेयर कैपिटल सब्सिडरी की कंपनी है, ये सबसी की तो लाइबिलिटी है, बट एट द सेम टाइम दिस इज एन एसेट ऑफ द होल्डिंग कंपनी. मीन्स सबसी को ये पैसा होल्डिंग को देना है और होल्डिंग को ये पैसा सबसी से लेना है. मीन्स कैन आई से दिस इज एन इंटर कंपनी लाइबिलिटी एंड इंटर कंपनी एसेट. In consolidation process, these two items will be eliminated, hence it's not shown in the neither as a liability nor as the asset in the consolidated balance sheet. So what I'm saying, what I told you, in consolidated balance sheet we need to only add assets and liabilities respectively of both the companies, and in this process we need to eliminate intercompany liability and intercompany asset. तो यहाँ पे 3 लाख रुपए की जो लाइबिलिटी सब्सिडरी कंपनी की है, दिस इज द लाइबिलिटी पेबल टू द होल्डिंग कंपनी एंड एट द सेम टाइम इट्स अपीयरिंग एज द liability asset of the holding company. Hence in a consolidation process these both amounts have been eliminated. Now the other assets, holding company is having an asset of 2 lakh rupees, subsidiary is having the asset of 3 lakh rupees. Now the total assets of these two companies comes to 5 lakh. It is respectively shown in the consolidated balance sheet as it represents the group assets. Hence in the consolidated balance sheet 5 lakh is appearing as the liability, which is a share capital, and the respective assets of the two holding and subsidiary, which is a group asset. This is a simple case which I have taken. In this case, holding company acquire 100% shares at a face value on the reporting date. नाउ कम्स द थर्ड केस, जो जिसको हमने नाम दिया गुडविल. ये मैं समझाता हूं आपको. ये हमारा केस कौन सा हो रहा है? वेयर होल्डिंग कंपनी हैव एक्वायर्ड द शेयर्स ऑफ सब्सिडरी एट मोर देन फेस वैल्यू. यहाँ पे हम एक केस बिल्ड कर रहे हैं. होल्डिंग कंपनी ने शेयर एक्वायर करे हैं 100% ऑन रिपोर्टिंग डेट, बट द शेयर्स हैव बीन एक्वायर्ड at more than the face value. What it means, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? होल्डिंग कंपनी ने ये शेयर्स मार्केट से एक्वायर करे हैं rather than being directly allotted by subsidiary company. Now holding company has paid 4 lakh rupees to acquire 100% stake in subsidiary. But point arises, why holding company have paid 1 lakh rupees extra? To a logical conclusion, होल्डिंग ने ये पैसा ज्यादा क्यों दिया होगा? Obviously there is only one reason. Subsidiary must have having some intangible, say goodwill in intangible, and that's why holding company have paid extra. So to ना आगे सिंपल केस से अब हम आगे एक नए कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल.
कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या बताना चाह रहा है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ये बताना चाह रहा है कि होल्डिंग ने सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर करने के लिए, कंट्रोल लेने के लिए कितनी कॉस्ट इंकर करी। टू अ लॉजिकल पर्सन आप बोलेंगे 4 लाख। नहीं, यहाँ पे कंसोलिडेशन प्रोसेस में हम ये क्या बोल रहे हैं, होल्डिंग ने 4 लाख रुपए तो पे करे हैं, बट यहाँ पे सब्सिडरी की ये लाइबिलिटी है, होल्डिंग की एसेट है। तो यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकालते हैं? होल्डिंग कंपनी ने 4 लाख रुपए पे करे, अगेंस्ट दैट इट गॉट एसेट ऑफ रुपीज 3 लाख, और सब्सिडरी की लाइबिलिटी कितनी है? 3 लाख। तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट मैच होती है, तो सब्सिडरी की एसेट्स कितनी है? 3 लाख। तो होल्डिंग कंपनी ने इस 3 लाख की एसेट्स को एक्वायर करने के लिए कितना मनी पे करा? 4 लाख। इन दिस इट मींस होल्डिंग कंपनी ने उस एसेट्स के ऊपर कंट्रोल लेने के लिए 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट पे करा, एंड दिस 1 लाख रुपी रिप्रेजेंट्स द गुडविल ऑफ सब्सिडरी। हमारा ऑब्जेक्टिव है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का टू प्रेजेंट ग्रुप एसेट्स एंड ग्रुप लाइबिलिटी। नाउ सब्सिडरी कंपनी is must having a goodwill of rupees 1 lakh rupees, hence holding company has paid 1 lakh rupees extra to acquire 100% stake in a subsidiary company. Hence as per our theme, as per our objective, ये 1 लाख रुपए हमारी कंसोल बैलेंस शीट में एक एसेट अपीयर होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द गेम कंसोलिडेशन प्रोसेस। ये जो 5 लाख रुपए है, ये 5 लाख रुपए कंसोल बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी अपीयर हो गए। एज अ सिंपल रूल, हम जब भी कंसोलिडेशन करेंगे, होल्डिंग कंपनी की जितनी भी शेयर कैपिटल है, it will appear as the liability as a share capital in a console balance sheet. नाउ यहाँ पे 3 लाख रुपए होल्ड सब्सिडरी की लाइबिलिटी है, बट एट द सेम टाइम दिस लाइबिलिटी इज एसेट ऑफ होल्डिंग कंपनी। इंटर कंपनी लाइबिलिटी एसेट्स है, इसको एलिमिनेट करेंगे, बट इन दिस एलिमिनेशन प्रोसेस वी कम टू नो कि होल्डिंग कंपनी हैज पेड 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा टू एक्वायर अ कंट्रोल ओवर सब्सिडरी कंपनी, hence this is the goodwill of the subsidiary company. It will appear as an asset of the goodwill company. It will appear asset of the in a in a console balance sheet. Again हमारी जो यहाँ पे अदर एसेट्स है 1+3, ये हमने यहाँ पे शो कर दिया, तो अकॉर्डिंगली मेरी टोटल बैलेंस शीट यहाँ पे मैच हो गई। मीन सबसे पहले सिंपल केस करा जहाँ पे होल्डिंग ने फेस वैल्यू पे एक्वायर करा था, वहां पे हमने एलिमिनेट कर दिया। सेकंड केस हम बिल्ड कर रहे हैं वेयर होल्डिंग कंपनी हैज एक्वायर अ शेयर एट मोर देन द फेस वैल्यू। इन दिस केस फर्स्ट, in this case we will do the cost of control. We will find out the cost of control. The formula for the cost of control is investment in subsidiary less H share holding company share in share capital of subsidiary. अभी कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, वो मैं टेकअप करूंगा। तो इस प्रोसेस में भी कम टू नो 1 लाख रुपए की गुडविल आ गई। 1 लाख रुपए की गुडविल कंसोल बैलेंस शीट में अपीयर होगी, और रिस्पेक्टिव अदर एसेट्स को भी ऐड, एंड हियर वी प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब हमने थर्ड केस कर रहे हैं वेयर होल्डिंग कंपनी हैज एक्वायर अ शेयर एट लेस देन अ फेस वैल्यू। This is the case again, holding company acquire 100% share in subsidiary on the reporting date. In this case, holding company acquire shares from the market at less than the face value, means उनको ये शेयर सस्ते में मिल गए। We will go by the process. हम सबसे पहले यहाँ निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी इज 2 लाख रुपीज less H share in share capital of subsidiary company, which comes to 3 lakh rupees, and here the amount comes to be the negative. It represents the profit to the holding company, means the cost of control is negative. It means holding company has acquired the share at a discount, and which is a capital reserve, and same will appear in a consolidated balance sheet as the liability side under the head reserve and surplus. तो यहाँ पे अगेन शेयर कैपिटल ऑफ द होल्डिंग कंपनी becomes the share capital of your consolidated balance in a consolidated balance sheet. The 1 lakh rupees is appear as this
और जो हमारी यहाँ पे ये एसेट्स थी 3 लाख प्लस 3 लाख, ये जो मेरी टोटल 6 लाख की जो एसेट्स आ रही थी फॉर ए ग्रुप की, ये हमारे यहाँ पे 6 लाख रुपए की एसेट्स आ गई, मेरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मैच हो गई। नेक्स्ट केस हम कर रहे हैं जहां होल्डिंग कंपनी ने पूरे 100% शेयर एक्वायर नहीं करे, 80% शेयर एक्वायर करे। Here the concept, a new concept comes into picture which is called minority interest. Again मैंने केस लिया, holding company acquire shares on the reporting date, but in this scenario holding company does not acquire 100% share but rather 80% share. Now here comes an important thing. First of all, पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो सब्सिडरी कंपनी है 3 लाख रुपए जिसकी कैपिटल है, 3 लाख एसेट्स है। नाउ दिस 3 लाख रुपीज लाइबिलिटी is not entirely the asset of holding company, means 20% liability is still being payable to outsider which is called minority interest. वो कैसे वर्कआउट करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे सिंस रिपोर्टिंग डेट पे एक्वायर करा है, कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाला। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हमने यहाँ पे सिंपल कैसे निकाला, अगेन इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 240, ये मेरा यहाँ पे ऐसे वर्कआउट हो गया। नाउ इन दिस केस व्हाट वी डिडक्ट, होल्डिंग कंपनी शेयर इन सब्सिडरी capital. The subsidiary capital is 3 lakh rupees. Hence what we do, हमने यहाँ पे 80% of 3 lakh डिडक्ट करा, since in value of investment and H share in subsidiary share capital same, there is neither goodwill nor there is a capital reserve. Now in this case, since holding company is not owning 100% share in subsidiary, there we need to work out the minority interest. In this example, the minority interest is simple. What we need to take, we need to take share capital on the reporting date. We need to add reserve and surplus, if any. Means what we need to find out, we need to find out the net worth of the subsidiary on reporting date. The net worth is coming to be the 3 lakh rupees. तो होल्डिंग एमआई का, एमआई स्टैंड फॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आ गया 60,000। नाउ 60,000 इज द लाइबिलिटी ऑफ द ग्रुप, दिस इज द अमाउंट पेबल टू द आउटसाइडर्स। अब हम कंसोलिडेशन जो शुरू करेंगे, ये अमाउंट एक लाइबिलिटी अपीयर होगा, यहाँ पे एमआई आएगा, ये आपस में डिलीट हो गया और आपका अदर एसेट 560 आएगी। देखिए अभी तक वर्कआउट करता हूं मैं, 5 लाख रुपीज आपकी शेयर कैपिटल आ गई, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने 60 वर्कआउट करा, इट्स अ लाइबिलिटी, इट रिप्रेजेंट द अमाउंट पेबल टू द आउटसाइडर, अदर एसेट 560 आ गई, मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई। मीन्स जब सब्सिडरी में होल्डिंग का 100% स्टेक नहीं रहेगा तो हम लोग यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालेंगे। एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट अभी तक जो एग्जांपल बिल्ड करे, इट्स वेरी सिंपल, वी हैव टू टेक सिंपल नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी ऑन द रिपोर्टिंग डेट और उसमें जितना एमआई का स्टेक है वो वर्कआउट करके हम लोग यहाँ पे आगे वर्किंग करेंगे। अब मैं केस लेता हूँ एमआई विद गुडविल, मींस होल्डिंग कंपनी हैज एक्वायर्ड शेयर्स एट मोर देन द फेस वैल्यू। अब अभी तक हम प्रोसेस समझ गए हैं, इट विल नॉट टेक मच टाइम। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे सेम केस चल रहा है, होल्डिंग कंपनी हैज एक्वायर्ड शेयर्स ऑन अ रिपोर्टिंग डेट 80%। हमने वर्कआउट करा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इन्वेस्टमेंट इन एस कितना आ रहा है मेरे पास 3 लाख रुपए, होल्डिंग कंपनी ने कितने शेयर होल्ड कर रखे हैं 80%, हमने 80% लेस करा, तो सिंस नंबर इज पॉजिटिव इट रिप्रेजेंट्स द गुडविल विच विल अपीयर इन अ कंसोल बैलेंस शीट। हमने एमआई वर्कआउट करा, एमआई सिंपल नेटवर्थ कितनी है 3 लाख रुपीज, यू कैन सिंपली से 20% इज द शेयर होल्डिंग बिलोंग्स टू द आउटसाइडर, 60,000 एमआई आ गया, तो 60,000 एमआई आ गया मेरे पास, शेयर कैपिटल 5 लाख आ गई, गुडविल 60 आ गई, अदर एसेट्स हमारी कितनी आ रही थी बैलेंस शीट में
अदर एसेट्स हमारी बैलेंस शीट में 5 लाख रुपीज आ रही थी, 5 लाख मैंने टोटल लिख दी, 560 मेरी मैच हो गई बैलेंस शीट। सेम लॉजिक पे मैंने केस बनाया एम आई विद अ कैपिटल रिजर्व। सिंपल है, हियर द होल्डिंग कंपनी हैज एक्वायर्ड शेयर ऑफ सब्सिडी एट लेस देन फेस वैल्यू। ये बैलेंस शीट आ रही है, लेट्स सी कैसे बनती है। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 2 लाख रुपए आ रही है, आपका 80% स्टेक है, 240 लेस कर दिया, 40,000 मेरा क्या आ गया यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ गया, ये मेरा कैपिटल रिजर्व आ गया। मेरे पास एम आई नेटवर्थ कितनी है एस की, 3 लाख रुपए, एम आई कितना आ गया मेरे पास, 60,000 आ गया। अगेन 5 लाख कैपिटल आ गई मेरे पास, यहाँ पे 60 एम आई आ गया, कैपिटल रिजर्व 40 आ गया। अदर एसेट जो मेरी बैलेंस शीट में आ रही थी, इट्स कमिंग टू 6 लाख रुपीज, 6 लाख यहाँ पे आ गया, मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई। मीन्स अभी तक मैंने जो आपको केस बताया, सिंपल 2 केसेस बताए। अब मैं आपको आगे रिजर्व एंड सरप्लस अगर सब्सी की बैलेंस शीट में है तो वो कैसे वर्कआउट करेंगे वो एक्सप्लेन कर। अब हमको यहाँ पे मैं केस ले रहा हूँ कि सब होल्डिंग कंपनी हैज एक्वायर्ड शेयर एट rather before the reporting date. Here reserve and surplus in a balance sheet of S need to divide into two parts, capital profit and revenue profit from only holding company perspective. Capital profits कौन से हुए, profit existing at the time of acquisition of shares of S limited by H. Revenue profits are profit earned by S limited after acquisition. इन दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। Capital profit form part of cost of control and revenue profit is added to the reserve and surplus of the H limited in console balance sheet. मीन्स जब हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस का खेल आ रहा है तो हमको एच लिमिटेड के पर्सपेक्टिव से प्रॉफिट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल प्रॉफिट कौन से, प्रॉफिट एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड बाय एच लिमिटेड, और उसके बाद जितना भी प्रॉफिट सब्सी ने अर्न करा है, इट्स अ रेवेन्यू प्रॉफिट एंड विच विल बी एडेड टू द एच लिमिटेड रेवेन्यू प्रॉफिट्स इन कंसोल बैलेंस शीट। ये तो मैंने जनरल अंडरस्टैंडिंग दी है, लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग विद एग्जांपल। अब बैलेंस शीट डेट, रिपोर्टिंग डेट हमारी आ रही है 31 मार्च 21 and the holding company has acquired share on 1/4/20 and that to 80%। इसमें अब कंसोलिडेशन के प्रोसेस में हमें एक चीज और मस्ट है, व्हाट्स द प्रॉफिट ऑफ द होल्ड सब्सिडरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर विच इज 20,000। अब हम जो कंसोलिडेशन करेंगे, कंसोलिडेशन में मेरे 3 स्टेप रहेंगे। 3 स्टेप कौन से रहेंगे, सबसे पहले मुझे करना होगा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट विच इज अ न्यू स्टेप, फिर हमको निकालना होगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, और तीसरा स्टेप एम आई। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एम आई हमने सीखा है, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे जो सब्सिडरी का 1 लाख का जो प्रॉफिट आ रहा है, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है इस प्रॉफिट को मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। दिस इज द लॉजिक एंड व्हाई वी नीड टू डू दिस, बिकॉज जो कैपिटल प्रॉफिट है इट्स गोइंग टू बी फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट एच लिमिटेड के रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड हो जाएगा। अब हमें देखते हैं कैसे करते हैं। हमने ये टेबल बनाया है, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, पर्टिकुलर्स, टोटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। अब हम लोगों ने यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखा, वी विल स्टार्ट विद द रिपोर्टिंग डेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए। ओपनिंग प्रॉफिट कितना, ओपनिंग प्रॉफिट मींस प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय एच लिमिटेड इज 20,000, हमने उसको क्या बोल दिया, कैपिटल प्रॉफिट। रिमेनिंग 80,000 प्रॉफिट बचा, ये हमारा क्या हो गया, रेवेन्यू प्रॉफिट। इसमें होल्डिंग कंपनी का शेयर 80% है, कितना आ गया, 16,064। मींस 1 लाख का जो सब्सिडरी का प्रॉफिट है, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा, कैपिटल प्रॉफिट एंड दी
रेवेन्यू प्रॉफिट, दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है, तो इसलिए हमने करा इसमें होल्डिंग कंपनी का शेयर निकाला। अब हमने निकाला कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। यहाँ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में थोड़ा सा फर्क आएगा जो ऊपर सीखा है, बिकॉज यहाँ पे हमको कैपिटल प्रॉफिट को माइनस करना है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी हमने कंसिडर करी है, 4 लाख रुपए, जो यहाँ पे आ गई है। शेयर कैपिटल कितनी है, 3 लाख रुपए, इसमें हमने एच का शेयर 240 माइनस कर दिया। अब ये जो मेरा प्रॉफिट है, capital profit, it too will be reduced from investment to arrive at the cost of control। तो इसकी वजह से हमने जो प्रॉफिट था 1 लाख प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट ऑन द रिपोर्टिंग डेट आ रहा है, उसमें कैपिटल प्रॉफिट हमारा कितना है 80,000, सॉरी 20,000। तो 20,000 में एच का शेयर 16 है। तो हमने सीखा जितना भी कैपिटल प्रॉफिट है इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, इट विल बी रिड्यूस फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। तो हमने इसको भी लेस कर दिया। तो टोटल हमारी गुडविल कितनी आ गई, 144। नेक्स्ट कम्स दी माइनॉरिटी इंटरेस्ट। हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या सीखा है कि जितनी भी नेटवर्थ है, उस नेटवर्थ में जितना एमआई है, उसको उस नेटवर्थ को परसेंट सेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास एमआई आ जाएगा। यहाँ पे शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख रुपए, एमआई की टोटल नेटवर्थ कितनी हो गई 4 लाख रुपीस। इसमें एमआई स्टेक कितना हो गया 80,000। अब हम कंसोल बैलेंस शीट पे अगेन आते हैं, कैसे बनेंगे। हमने सीखा है ये जो लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी एज इट इज कंसोल बैलेंस शीट में आ गई। देखते हैं, ये लाइबिलिटी एज इट इज कंसोल बैलेंस शीट में आ गई। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने सीखा लाइबिलिटी में आता है, ये लाइबिलिटी में आ गया। एच का जो खुद का रिजर्व है, दिस इज अ लाइबिलिटी, अमाउंट बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर ऑफ एच, ये 1 लाख रुपए भी लाइबिलिटी में आ गया। अब जो एस लिमिटेड का प्रॉफिट है, एस लिमिटेड का 1 लाख का प्रॉफिट में 80,000 इज द रेवेन्यू प्रॉफिट। इसमें एस का होल्डिंग का शेयर कितना है 64, वो हमने 64 यहाँ पे ऐड कर दिया। गुडविल हमने वर्कआउट करी थी, कितनी गुडविल वर्कआउट करी थी, हमने गुडविल करी थी 144। 144 आपका यहाँ पेयर हो गया। इनकी जो टोटल एसेट्स कितनी आ रही थी, इनकी एसेट जो आ रही थी टोटल 6 लाख रुपीज, ये आउटसाइडर एसेट्स आ रही थी। 6 लाख रुपीज की मेरी एसेट्स आ गई। स्टूडेंट्स विल अप्रिशिएट कि मेरी बैलेंस शीट ये पूरी की पूरी 6 लाख 7, ये 6 लाख हो गया प्लस 144, 744, और ये 744 मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई। तो यहाँ पे इस बैलेंस शीट में हम लोगों ने रिजर्व एंड सरप्लस में तो जब भी आपका रिजर्व एंड सरप्लस आएगा तो आपको ये एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करना है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ पे हमने एज्यूम करा था कि सारे शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर करे 1420 को। तो यहाँ पे हमने एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करा। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में एक कंट्रोल पॉइंट क्या आता है, एक कंट्रोल पॉइंट ये है कि जो भी रेवेन्यू और कैपिटल प्रॉफिट आएगा इट शुड बी इक्वल टू द प्रॉफिट एट रिपोर्टिंग डेट। ये आप लोगों को इंश्योर करना है प्रॉफिट एट रिपोर्टिंग डेट, बिकॉज हम कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ सब्सी के प्रॉफिट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। एक टिपिकल केस आगे और बिल्ड करता हूं। नाउ द होल्डिंग कंपनी हैज एक्वायर्ड शेयर इन द मिड ऑफ द ईयर। दिस इज अ टिपिकल केस। ये समझाता हूं मैं आपको। स्टेप्स हमारे 3 ही रहेंगे, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, सीओसी एंड द एमआई। अब नाउ एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करना स्टार्ट करते हैं। 1 लाख रुपए प्रॉफिट आया, होल्डिंग प्रॉफिट 2 लाख था, इसको हमने कैपिटल प्रॉफिट में टिक कर दिया। इट मींस प्रॉफिट जो सब्सी ने जो प्रॉफिट अर्न करा है 2021 में, कितना अर्न करा है 80,000। बट हमने जो चीज सीखी, व्हाट्स अ कैपिटल प्रॉफिट, प्रॉफिट एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी ने शेयर कब एक्वायर करे 30 को। यहाँ पे हमने एक लॉजिकल एजम्पशन ले रहे हैं, द प्रॉफिट ऑफ एस हैज बीन अर्न्ड यूनिफॉर्मली ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1420 to 3620 हमने वर्कआउट करा। मींस
30/6/20 तक होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी ने 20,000 का प्रॉफिट कमाया और उसके बाद आफ्टर द एक्विजिशन कितना कमाया? 60,000 का प्रॉफिट अर्न करा। इट मीन्स द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय द as till the date of acquisition of the shares by holding is 40,000, and after that whole subsidiary company has earned a profit of 60। फिर जो मैंने आपको कंट्रोल पॉइंट बताया था हम लोगों ने ये इंश्योर करा कि जो टोटल कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट आ रहे हैं मेरे, इट्स इक्वल्स टू दी 1 लाख विच इज द सब्सिडरी प्रॉफिट ऑन द रिपोर्टिंग डेट। बस ऑब्जेक्टिव है कि हमको टोटल प्रॉफिट को सब्सिडरी की जो रिपोर्टिंग डेट पे प्रॉफिट है 2 पार्ट में डिवाइड करना है। इसमें हमने रिस्पेक्टिव होल्डिंग कंपनी का शेयर निकाला, कैपिटल प्रॉफिट में रेवेन्यू। फिर हम आए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, स्टूडेंट से देखेंगे। होल्डिंग का सब्सिडरी की शेयर कैपिटल कितनी आ रही है? 3 लाख। 3 लाख में 240 का शेयर आ गया। एच का शेयर कितना आ गया? 32। दिस इज माई गुडविल जो मेरी कंसोल बैलेंस शीट में अपीयर होगी। अब एम आई के लिए वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो इनटू कैपिटल रेवेन्यू प्रॉफिट। नेटवर्थ कितनी आ रही है आपकी? नेटवर्थ आपकी आ रही है बेसिकली हाउ मच? 4 लाख रुपए। तो एम आई कितना होगा? 80,000 हमारा यहाँ पे एम आई हो गया। अब हम लोगों ने बैलेंस शीट बनानी शुरू करी। ये जो 5 लाख की कैपिटल है, ये 5 लाख की कैपिटल एज इट इज हमारी कंसोल बैलेंस शीट में आ गई बस। एम आई 80,000 था, ये एम आई 80,000 मेरी बैलेंस शीट में आ गया। होल्डिंग का रिजर्व कितना है? होल्डिंग का रिजर्व 1 लाख है प्लस 48,000 ये वाला जो आ रहा है, ये 48 ऐड कर दिया हम लोगों ने, तो 1,48,000 आ गया। गुडविल हमने कितनी वर्क करी? 128 गुडविल आ गई। और हमारी एसेट्स कितनी आ रही है? एसेट्स हमारी आ रही है 6 लाख रुपए की, ये हमारी 6 लाख रुपए की एसेट्स आ गई। टोटल 728 से बैलेंस शीट मैच हो गई। तो आई होप स्टूडेंट को अभी जितना मैंने आपसे डिस्कस करा है, सिंपल पार्ट अभी तक ये क्लियर हुआ होगा। हाउ टू मेक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मीन्स 3 स्टेप ध्यान रखना है अपने को। डेट ऑफ एक्विजिशन, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, एम आई। मीन नेक्स्ट डिस्कशन मैं आपको आगे लेके चलूंगा कि अगर डिविडेंड वाला केस होगा, हाउ टू डू द कंसोलिडेशन, और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लाइबिलिटी है, हाउ टू डू रीवैल्यूएशन। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा।